All right, we are live and let's start off with today's class where we are going to be diving deep into the concept of buses. So, just to give you guys a quick recap, yesterday we started off, not started off, but we discussed this whole long context of address bus, what are their purposes, the direction, explanation of all that, and the impact of these widths. How important are widths? If we increase these widths, what's going to happen, and all that stuff. So हमने कल काफी डिटेल के अंदर ये चीजें पढ़ ली थी, but I told you guys that if you look at this, we have different routes, right? So maybe road number 1 is for something else, road number 2 might be for something else, and road number 3 might be for something else. The same concept applies in computer science, because up here too, where is the highlighting, man? Oh, it's up here. So the same concept applies in CS too, because maybe the address bus works just like the delivery route. Maybe for the civilians, we might have some other route, right? So maybe if I want to share data, that might be done by someone else. Just like that, we had a different route for school kids. So if we have some new route, some new bytes for the control signals, that might be dealt with something new, right? So हमने कल इसमें इन 3 roads में एक road को हमने कल detail में discuss कर लिया था. We discussed the address bus in great depth. Today, we're going to be starting off with the second number of bus, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, and that is known as basically the control bus. So let me write it with white. Number 2. It is the control bus. अब what is control bus? Control bus basically, या बल्कि control bus से पहले let's do data bus. Data bus is something जो कि पहले हो जाए, फिर आप लोग को control bus की ज़्यादा समझ आएगी. So the second one which we are going to be discussing is basically the data bus. अब from the word data bus, अगर आप लोग कल के example को देखें, we discussed address bus. So the bus or the wire was basically dealing with what? It was dealing with these addresses, right? Addresses of locations, वगैरह, sending addresses from CPU to hardware, from to other parts of computers and all that. But it was only dealing with addresses, right? अब today जो हम पढ़ने जा रहे हैं, the very first thing that is known as the data bus. Now the word data basically means files, instructions, and all these values या फिर addresses, whatever it is. So जो data bus है ना, data bus, it transfers the actual data between your computer components. So अगर आपसे पूछा जाए define data bus, what does it do? What does the data bus do? तो आप लोगों ने क्या लिखना है? You need to talk about how data bus transfers the actual data. So आप लोगों ने लिखना है it transfers the actual data. It transfers the actual data. But अब ये तो हमें पता लग गया actual data. But what do we mean by the word data, right? ये भी तो important बात है, आप लोग को समझ आनी चाहिए कि data कहते किसे. So data in this context basically refers to your values. Like अगर मैं 2 + 2 करूँ तो 2 is a value. Maybe इसका answer 4 is a value. So these values, this is the type of data ये transfer कर. इसके बगैर instructions अगर आप लोग को याद हो, मैंने आप लोग को बताया था, if I say print, तो ये जो प्रिंट करने की चीज है, how does the computer know कि यार I have to print something? That is basically an instruction. If I type the button S, तो screen के ऊपर जो S आ जाता है, what is this? That's an instruction. So any step, any order to the computer is an instruction. ये data में आता है, and then तो आपकी and then maybe some sort of other game files which you want to transfer. Maybe जो मैं कल बोल रहा था कि RDR2 की example में I was discussing how आपने DirectX 9 की files या वो चीजें open करनी हो, तो वो जो जितना data होता है ना, वो आपका जाता है किसमें? Data bus. So it transfers the actual data, and the actual data basically refers to your values, it refers to instructions, and you can also talk about files. So ये आपकी 3 चीजें हैं जो कि बेसिकली आपके एक्चुअल डेटा के अंदर ट्रांसमिट होती हैं. तो अब ये चीजें तो हमने पढ़ ली, लेकिन अब हमें ये समझना है कि अगर हमने ऊपर एड्रेस बस में एक कहानी पढ़ी थी, we said that address bus only works in one way. We talked about how address bus is what? It is unidirectional. But now we need to also have a look at कि जो हम आज जो पढ़ रहे हैं data bus, is it also unidirectional? But आप एक बात मुझे बताओ, if I want to maybe if I press maybe the play button, the space bar on my keyboard, तो YouTube के ऊपर आवाज चली जाती है, राइट? लाइक द वीडियो प्लेज ऑन द YouTube, राइट? एंड उधर से क्या होता है, तो डेटा यहाँ से मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि प्ले द वीडियो फ्रॉम द स्पेस बार, एंड एट द सेम टाइम आपका YouTube से जाके अदर कंपोनेंट्स में लाइक स्पीकर पे चला जाता है कि लाइक प्ले ऑडियो, राइट? तो फिर आपको आवाज भी आती है. नाउ व्हाट्स हैपनिंग? Data goes from my
hand, like basically when I press the space bar, it goes to the CPU, executes it and it plays the video, and फिर वहां से डेटा जाता है फिर से मे बी स्पीकर्स के पास, उसको एग्जीक्यूट करने लाइक। तो इन सिंपल वर्ड्स आपको ये समझने की जरूरत है कि जो डेटा बस आपका होता है ना, डेटा बस की जो डायरेक्शनल है, दैट इज बाई डायरेक्शनल। सो इफ आई राइट द वर्ड डायरेक्शन, if I write the word direction, तो हम डायरेक्शन डेटा बस की रेफर करेंगे as bi-directional. So the word bi-directional basically means two ways. Bi-directional basically refers to two way. And what do we mean by two way? इसका मतलब है डेटा can go and come from the CPU. Like एक तरफ से आप जा भी सकते हैं, उसी रास्ते पे वापस भी आ सकते हैं। And usually जो आपका like अगर हम ये बात पहले लिख लें, data can go to or come from the CPU, पहले ये समझ लो। So this means data can go to or come from the CPU. Like in simple words, इसका ये मतलब आता है आपके पास कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल आ जाती है कि if I'm maybe जो हम कल एग्जांपल्स कर रहे थे कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कोई सेंसर लगा लेता हूँ, मे बी दिस इज सम डिवाइस, ओके, दिस डिवाइस एंड देन आई हैव माय सीपीयू अप हियर। तो जो एड्रेस बस थी, एड्रेस बस में ये थी कि द डेटा कैन ओनली ट्रेवल इन वन डायरेक्शन। सो लाइक इट वाज दिस वे, आपका डेटा सारा सीपीयू से डिवाइस की तरफ ही जाता था और किसी डायरेक्शन में नहीं था। दिस वाज अ स्लाइड मिस्टेक आई मेड यस्टरडे। आई टॉक्ड अबाउट हाउ मे बी डेटा गोज फ्रॉम योर हार्डवेयर बैक टू सीपीयू, लेकिन रिमेंबर एड्रेस बस के अंदर डेटा गोज फ्रॉम सीपीयू टू हार्डवेयर डिवाइस और फ्रॉम हार्डवेयर डिवाइस टू मे बी अगर यहाँ पे स्पीकर आ जाए तो यहाँ पे स्पीकर के अंदर भी डेटा जा सकते हैं, बट इट कैन नेवर गो फ्रॉम अ हार्डवेयर टू अ सीपीयू। तो ये क्लैरिफिकेशन है जो कल मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। डू नो कि आपका डेटा एड्रेस बस के अंदर वापस सीपीयू में नहीं जा सकता। लेकिन ये तो आप लोग का हो गया एड्रेस बस के। जो आपका डेटा बस आता है ना, डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल। तो बाय द वर्ड बाई डायरेक्शनल आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इफ दिस इज माय सीपीयू and then this is my, let's say, some device, so the data can go from CPU to the device and also from the device to the CPU. So device might be able to send data to CPU for processing. At the same time, CPU can also ask the device to do some instruction or something. So this two ways का मतलब है कि data can go in this direction too and at the same time data can go in this direction too. This is something जो कि आपका ये special किस्म का database allow करते हैं. So this route, this specific bus is basically the data bus because it allows transmission in both direction. So जो हम यहाँ पे बोले ना कि data bus की जो direction है, that is basically bi-directional. So by the word bi-directional we means कि data can go to or come from the CPU. And usually जो आपके data bus होते हैं ना, जो आपका data bus है, data bus sends data between your CPU to the memory. By memory I mean what? Hard disk. So आपका usually जो data transmit होता है, that is basically between CPU, let me make arrows, CPU and memory, and at the same time मतलब एक तो आपका यहाँ पे data mostly spread होता है, like shift होता है and transmit होता है, and at the same time जो आपका second point है जहाँ पे mostly data goes here and there is between your CPU and input output devices. So CPU and at the same is it lagging? Input output device. Input output device. Guys, is the I guess it's not lagging by the way. You can still let me check it up here. मैं अपने वाली स्क्रीन पे दूसरी स्क्रीन पे देख लेता हूँ. Yeah, sure I can. Just a moment. एक सेकंड. Let me just zoom out a bit. आपको यहाँ से क्लियर समझ आ रही है सारा. Can you guys see it now? अच्छा, let me. सैफुल्ला, कैन यू जस्ट रीजॉइन? मे बी उसका इशू आ रहा हो, कभी कभार इसमें होता है, लेकिन आई गेस देयर इज नो सच इशू एट माय पार्ट. सो ये आप लोग देख लो. नाउ आई वाज बेसिकली डिस्कसिंग डेटा बस. So just to give you guys a quick recap, एड्रेस बस में आपको मैंने कल बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट डू वी मीन बाय बसेस, राइट? बट राइट नाउ आप लोग को ये समझने की जरूरत है कि नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा बस, I basically refer to that specific route, which is only used for the purpose of what? For the purpose of transmitting data. So it transfers the actual data. So जो आपका वो वाला, oh my bad. So जो आपका, oh, okay, so we cannot erase it, my bad. So जो आपका वो वाला रास्ता हो जिसके ऊपर we are transmitting the data, that is basically done through this route which is known as the data bus. And उसके ऊपर किस किस्म का डेटा हो सकता है? That can be values which might be 1 2 3 4, all these letters and all that stuff. It can be instructions, maybe print something, maybe do that, maybe some action, any order or something, or it can be maybe some files, जैसे मैंने आप लोग को कल बताया था
कि maybe we have something related to maybe what do we call it? We might have something related to DirectX 9 or some file which might be required to load up at the back. So वो जो चीज़ है वो भी files आपका होता है. तो ये तो डेटा आता है जो आप डेटा बस के थ्रू वो करते हैं. उसके बाद आपके पास आती है डायरेक्शन. डायरेक्शन के अंदर आप लोगों ने ये समझना है कि जो आपका डेटा बस होता है ना, डेटा बस इज बाय डायरेक्शनल. दिस बेसिकली मीन्स डेटा कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम दैट प्लेस टू द ओरिजिनल जहां से आप भिजवा रहे हो. यूजुअली जो आपका डेटा ट्रांसमिट होता है ना, ये तो वैसे इट्स समथिंग व्हिच इज देयर इन द बुक एंड इट माइट नॉट बी टेस्टेड, लेकिन इट इज समथिंग आप लोग को पता होना चाहिए कि व्हेन डीलिंग विद डेटा बस, द डेटा इज मोस्टली ट्रांसमिटेड बिटवीन योर सीपीयू. So it's mostly between your CPU and your memory. What do I mean by memory? Memory basically refers to your hard disk. HDD basically hard disk होता है, and SSD. Where did I go? Okay, data can go. Okay, समझा दो. And at the same time, CPU and input output devices के दरमियान बहुत हो सकता है कि like अगर मैं CPU speaker को बोलते हैं कि play some sound, या at the same time if I'm using this graphic tablet, तो इसके ऊपर मैं कोई चीज लिख रहा हूँ तो data transmit हो रहा है ना CPU में. That is basically this data is being shifted and transmitted through this data bus. Ab Saifullah asked a question, sir, can you explain what have you written by the statement data can go to or come from the CPU? Basically, Saifullah, I'm trying to explain the same thing कि देखो it is bidirectional. तो इसका मतलब है कि अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें what did I tell? I talked about how data can go from your device to where? It can go to CPU. And at the same time, data can go from your CPU to your device too. तो मतलब आप डेटा भेज भी सकते हो and at the same time data can come to you too. तो वही सेम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है कि data can go to or come from the CPU. मतलब data can go to a CPU from the device, मतलब आपका डेटा यहाँ से यहाँ भी जा सकता है and at the same time अगर CPU ने कुछ भिजवाना हो तो वो भी आप CPU to device भी डेटा जा सकता है. तो इस स्टेटमेंट का बेसिकली ये मतलब है कि द डेटा कैन गो इन बोथ द डायरेक्शन. सो डिवाइस टू सीपीयू इज पॉसिबल एंड एट द सेम टाइम सीपीयू टू डिवाइस इज पॉसिबल. एड्रेस बस में आई डिड क्लैरिफाई एंड आई डिड मेंशन कि मैंने कल थोड़ा सा ये गलत बोल दिया था. एड्रेस बस के अंदर डिवाइस टू सीपीयू नहीं जा सकता. एड्रेस बस इज ओनली सीपीयू टू डिवाइस या सीपीयू टू इनपुट आउटपुट, सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स. जो आपका डेटा बस है, डेटा बस अलाउज बोथ द डायरेक्शन. तो आपका सीपीयू में जा भी सकते हैं, सीपीयू से आ भी सकता है. So this is basically something जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए about what data bus. अब data bus का ये तो हो गया. This is basically everything you need to know about data bus. लेकिन हमने जो कल address bus के एक last component पढ़ा था, if you guys remember, we talked about the width. We talked about how no, in address bus it does not go to CPU, it basically goes from CPU. So address bus का scene इस तरह होता है कि address bus के अंदर ये CPU है एंड यहाँ पे कोई अगर कंपोनेंट है, डिवाइस कंपोनेंट, तो द एड्रेस इज बेसिकली इन देयर इन योर सीपीयू. तो आपका डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है एंड दैट इज बेसिकली सीपीयू टू डिवाइस. आपके अंदर एड्रेस बस के अंदर इट डज नॉट गो from the device component to the CPU. This is not possible in your address bus. Whereas, yes, exactly, Saifullah. It is only possible कि आपका address shift हो from your CPU to device component या hardware या whatever that thing is जिसके अंदर आपने एड्रेस भिजवाना है. तो ये एड्रेस बस के जो डिवाइस बस के उसकी वो वाली कहानी है, डेटा बस के. सॉरी. अब जो हमने कल एक लास्ट चीज पढ़ी थी एट द वेरी एंड, वी टॉक्ड अबाउट विड्थ. वी टॉक्ड हाउ व्हेन यू इंक्रीज द विड्थ you basically can send more addresses at once. We had this long discussion कि like हमारे पास 8 bits होते हैं, 16 bits होते हैं, 32 bits होते हैं, and फिर हर उसमें ये होता है कि if you want to send the greater the width, the greater the number of bits, the wider the address bus, the greater the number of memory locations. So at same time, exactly, अगर आप 32 bits वाली length use करते हैं, address bus use करते हैं 32 bits वाली, तो उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर there can be way more memory locations as compared to अगर आप 8 bit की use करते हैं तो उस context में बहुत कम होंगी. So the same to same concept applies to your data bus too. Data bus में ये होता है कि when you increase the width, what do I mean by width? Same to same. जैसे मैंने कल बोला, we can have 8 bits, 16 bit, 32 bit, 64 bit. तो जो आपके bits होते हैं like 8 bit, then you have 16 bit, then you have 32 bits. Just a moment, Ryan. 32 bits and then it's 64 bits. So, sir, in the address, the data goes from the CPU to the data. Exactly, बिल्कुल Ryan. This is the exact, बिल्कुल आपने जो बोला यही है. Address bus में data goes from the CPU to the device या
device से I mean components like hardware, memory, input output devices, all that. लेकिन जब आपका डेटा बस होता है तो डेटा बस के अंदर आपका दोनों साइड जा सकता है, आपका डिवाइस कंपोनेंट टू सीपीयू भी हो सकता है एंड सीपीयू टू कंपोनेंट भी हो सकता है. एड्रेस बस में इट्स ओनली सिंगल वे, जस्ट लाइक सैफुल्लाह मेंशन. सो नाउ बैक टू, बिल्कुल सैफुल्लाह ऐसा ही, बैक टू द विड्थ वाला कॉन्सेप्ट. तो आप याद रखो, whenever you are discussing width of these buses, what do we mean by these buses? Remember, these buses are basically those wires between your maybe जो आप SSD लगाते हो लैपटॉप के अंदर and then your CPU, उसको जो कनेक्ट करने वाली wires होते हैं, these are basically these buses. So those buses have a thing known as width, and those width are basically in terms of bits. तो आप 8 bits की कर सकते हैं, then it's 16 bit, then 32 bit and 64 bit. अगर आप लोग कभी विंडोज इंस्टॉल करते हैं या इफ यू डाउनलोड सम सॉर्ट ऑफ ऐप, whenever you download something, there is something known as 64 bit and 32 bit. So आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर आपको ऑप्शन दिया जाता है, do you want to download it for 64 bit या do you want to download it for 32 bits? So that is basically यही कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस हो रहा होता है. अगर आपकी विंडोज 32 बिट के ऊपर इंस्टॉल होती है तो फिर आपने 32 वाला करना होता है, अगर 64 पे होते है तो 64 वाला करना होता है. So अब जब आप width को increase करते हो, which simply means कि when you shift from maybe 8 bits to maybe 32 bits, the thing is when you increase the number of bits, it basically increases the width. So like originally if this was your wire, तो इसके अंदर अगर let's say 1 2 3 चीजें जा सकती थी. Now if you increase it to 32 bits, now the wire will be so much thicker. तो अब आप देखो, आप एक टाइम पे 1 2 3 4 5 6 maybe 6 to 8 more things can be transmitted at once. तो क्या हुआ? I just increase the width, and so when I increase the width, so just like Saifullah mentioned, the more the bits, the more width it will be, and so when I have a greater width, I can transmit more data. So जब आप width को बढ़ाते हो ना, आपकी ट्रांसमिशन तो फास्ट होती है, लेकिन ट्रांसमिशन फास्ट होने से ज्यादा ये कि देखो अगर आप पहले इतने में सिर्फ एक डेटा पैकेट जा सकता था, now at this place you can maybe transmit multiple data packets at once. So bigger road, more cars, less traffic. Exactly Ahmed, बिल्कुल इसी तरह का सीन है. So जब आप width को increase करते हो, what happens is that it allows you to basically transmit more data at once. So the wider it is, the more data can be transmitted at once and the faster the performance. So I will write this: the wider the bus, the wider the bus, the more the data that can be transmitted, Yeah, definitely it will be a bit more costly. आप लोग देखो जो आपके पुराने processors होते थे, those were 32 bits वाले. The old PCs used to have 32 bits. Now the newer PCs have 64 bits. अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो, definitely the newer PCs are way more expensive because it will be having way more technology incorporation and all that stuff, so it will be expensive. But the wider the bus, the more the data that can be transmitted at once, and so as a result what's going to happen? Faster performance. So अगर question कभी आया इस तरह, यूजुअली इस तरह टेस्ट तो नहीं होते, लेकिन डू कीप इन योर माइंड कि अगर इस तरह का कोई आता है आपके पास क्वेश्चन जिसके अंदर वो बोलते हैं कि यार आई वांट टू इंश्योर कि द कंप्यूटर इवन ऑपरेट्स इन अ वे मोर फास्टर वे, तो जो आप एक चीज लिख सकते हो दैट इज बेसिकली इंक्रीज द विड्थ ऑफ दीज बसेस. ओ बल्कि दिस हैज बीन टेस्टेड, ये अभी आप लोग आगे पढ़ोगे. अ क्वेश्चन यूजुअली कम्स अप जिसके अंदर वो आपसे बोलते हैं कि let's say Saifullah wants to improve his computer's performance. Now I'm not sure whether it's in IGCSE or AS. ये अभी मैं चेकआउट कर लूंगा, फिर आप लोग को बता दूंगा. अगर आप लोग के कोर्स में हो तो we are going to discuss it as we move along the course. But a question comes on which states कि how can you improve the performance? So one point that usually the marking scheme expects students to write is how you can increase the performance by increasing the width of address bus, database, and all that. So when you increase the bus width of the bus, you can transmit more data, carry more addresses, and उसकी वजह से क्या होता है? आपके faster performance हो जाती है. Saifullah asked, sir, the wires used in camera, what are they? यार अब वो इस तरह है ना कि अभी आगे हम पढ़ेंगे सेंसर्स वाला टॉपिक,
तो उधर आपको समझ आ जाएगी कि जो कैमरा के पीछे जो लॉजिक होती है, जो दीज ऑटोमेटेड कैमरास, उसके पीछे क्या गेम होती है, वो हम उधर ही पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 3, लेकिन इंशाल्लाह वो हम आगे पढ़ेंगे। सो उधर आपका ये क्वेश्चन भी एड्रेस हो जाएगा। बाय द वे, द वायर्स विच आर जनरली यूज, अगर वो उसके अंदर यूज हो रहे, कैमरा के अंदर जो मेमोरी और उन चीजों के दरमियान, वो तो यही वाली बसेस यूज हो रही होती है। लेकिन दीज वायर्स विच आर एक्सटर्नली कनेक्टेड टू दैट डिवाइस, जो कि आपकी किसी मॉनिटर के साथ लगी होती है, दोज आर दीज नॉर्मल डिवाइसेस, नॉर्मल वायर्स जो बाहर घर में इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती है, वो वाली चीजें होती है। सो वी आर डन विद द डेटा बस। तो डेटा बस का एक ही काम है, ट्रांसमिट द डेटा बस। एंड ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आप लोग को समझ आ जानी चाहिए, स्पेशली विड्थ वाली बात को आपको बहुत पता होना चाहिए कि व्हेन यू इंक्रीज द विड्थ, इट बेसिकली इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस। हाँ चलो, गुड गुड। अब ये तो हो गया। नाउ वी हैव द लास्ट फॉर्म ऑफ वायर or bus, my bad, we need to call it buses. When we are talking about these wires within the computer, these become as buses. So the last thing जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए ना, that is basically the control bus. अब from the word control, आप लोग के जहन में क्या आता है? Definitely if I'm saying कि यार I am controlling you guys, so this basically means कि I might be looking at you guys, yeah, I might be ordering you guys to do this thing, yeah, I might be giving you signals ke bro do this, yeah, don't do this. So that is basically controlling, right? तो जो आपके control bus होते हैं ना, exactly Ahmed, control bus is basically that specific route which carries your control signals. कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं? कंट्रोल सिग्नल्स आर बेसिकली स्टफ जैसे हमने पढ़ा था, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन। इफ आई एम लाइक ओके, चार्जिंग जब खत्म हो जाती है आपके लैपटॉप्स के अंदर, जब आपकी चार्जिंग खत्म होती है एंड इवन इफ यू आर प्लेइंग अ गेम, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप सा आ जाता है एंड इट सेज चार्जिंग इज लो, प्लग इन योर चार्जर, राइट? तो इवन दो यू आर प्लेइंग अ गेम, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। हाउ डज दैट हैपन? व्हाई इज इट इंटरप्टिंग योर गेमिंग एक्सपीरियंस? ये जो ऑर्डर्स देते हैं ना, बिल्कुल ये जो ऑर्डर्स देते हैं, that is basically done by these control signals. And जो control signals को basically आपके गेम तक ले जाता है from your CPU, that route is basically known as your control bus. So अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर define control bus, you need to talk about how the control bus is the bus which carries control signal, which carries control signals फ्रॉम। अब कंट्रोल सिग्नल्स कहां से जनरेट होते हैं? फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। अगर आपको याद हो, हमने बहुत पहले पढ़ा था एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर समथिंग नोन एज CU। तो वो कंट्रोल यूनिट मैंने आप लोग को बताया था ना कि इट इज टाइप ऑफ कि आपकी जो ब्रेन CPU के अंदर मेन जो दिमाग वाला काम करता है, जो कि चीजें डिसाइड करता है, और वो चीजें दैट इज योर कंट्रोल यूनिट, राइट? तो इट कैरीज दीज कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम योर कंट्रोल यूनिट टू कोऑर्डिनेट ऑपरेशन। तो विच कैरीज कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम the control unit, from the control unit for what purpose? जो purpose इनका होता है वो ये होता है to coordinate operation। तो आप लिखते हो to coordinate operations। What do I mean by operations? Operation means कि यार अब आप लोग गेम खेल रहे हो, लेकिन अगर बैटरी खत्म हो गई, जैसे आपने लेस देन 5% बैटरी, तो जो आपको पॉपअप आता है, तो दैट इज टू इंश्योर कि यार आप कोऑर्डिनेट कर लो कि आपकी गेम बंद ना हो जाए, आप प्लग इन कर लो या कोई इस तरह। टू कोऑर्डिनेट ऑपरेशन ये कंट्रोल सिग्नल्स लेकर जाती है। एंड बेसिकली कंट्रोल सिग्नल्स आर बेसिकली स्टफ लाइक सिग्नल्स आर थिंग्स लाइक जो आपके रीड ऑपरेशन आ गए, राइट ऑपरेशन आ गए, some sort of interrupts को हम आगे बहुत डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो डू राइट द वर्ड इंटरप्ट्स, आप लोग को बाद में क्लियर हो जाएगा। इंटरप्ट्स हो गए, फिर उसके बगैर आपके पास इसमें आ जाता है क्लॉक के रिलेटेड, मतलब हाँ वायरसेस एंड अपडेट्स का ये कि वायरसेस एंड अपडेट्स का अगर कोई सीन आता है दैट आल्सो कम्स अंडर इंटरप्ट वाली कहानी। ओके, इट कैन कम अंडर इंटरप्ट वाली कहानी। इफ नॉट आपके टाइमिंग सिग्नल्स, टाइमिंग या फिर clock signals, timing clock, let me write it a bit up here, timing clock signals। तो अगर आप लोग को याद हो, हमने बहुत स्टार्ट में पढ़ा था कि कंट्रोल यूनिट का एक काम होता है टू इंश्योर सिंक्रोनाइजेशन। Remember, ensure synchronization, this was what we studied under what? The control unit। तो जो उसको इंश्योर करने के लिए जो क्लॉक सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट होते हैं, वो भी जो ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज बेसिकली आपका कंट्रोल
सिग्नल्स एंड कंट्रोल बस के थ्रू ही होता है. ओके ओके, मैं उसकी बात कर लूंगा. डू सेंड मी अ मैसेज, मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि उसका क्या सीन होता है. तो अब कंट्रोल बस में आप लोग को इस चीज का पता होना चाहिए कि कंट्रोल बस क्या होता है. इट कैन कैरी कंट्रोल सिग्नल्स from the control unit to control operation या coordinate operations. So in simple word, control unit क्या है? Control unit is within your CPU. So you can generally say that it can carries control signals from your CPU to other parts of your computer. अब डायरेक्शन की बात करते हैं. डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने इतनी चीजें कर ली, व्हाई नॉट डिस्कस डायरेक्शन. यार इसमें अब कौन सा कलर रोड यूज करना चाहिए? लेट्स चेक दिस ऑरेंज. ऑरेंज कैसा है? सो when talking about directions, oh my bad. So when talking about directions, we saw how address bus is unidirectional, how data bus is bidirectional. At the same time, remember control is something जिसके अंदर मे बी आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ बोल रहा हूँ, आप भी मुझे फीडबैक दे रहे हो. तो रिमेंबर कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल सिग्नल्स एंड कंट्रोल बस इज जस्ट लाइक द डेटा बस, इट इज बाय डायरेक्शनल. तो आप लिखते हो द डायरेक्शन फॉर योर कंट्रोल बस इज बेसिकली बाय डायरेक्शनल. एंड अगेन व्हाट डू आई मीन बाय डायरेक्शनल? अगेन द सेम वे जैसे मैंने आप लोग को ऊपर समझाया, इट इज टू वे. सो टू वे का मतलब है कि एट द सेम टाइम यू कैन ट्रांसमिट एंड सेंड सिग्नल्स from the CPU and to the CPU. So direction, तो मतलब signals कौन से signals? Control signals. Let me write it up here. Control signals can go from the CPU, just like बिल्कुल from the CPU and to the CPU. So मतलब CPU to device भी possible है and device to CPU भी possible है. So अगर इसको मैं इस तरीके से भी लिख लूं, just the way Rayan just mentioned, we can talk about it like CPU to device, that's also possible. And device की जगह आप लोग hardware use करें, that's a better word to be honest, and hardware to CPU. And at the same time remember, आप transmit क्या कर रहे होते हो? You are transmitting these control signals. So we are basically dealing with these control signals. So ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात है. कंट्रोल सिग्नल्स कैन गो फ्रॉम सीपीयू एंड टू सीपीयू, एंड दिस बेसिकली मींस कि सीपीयू टू डिवाइस कैन बी ट्रांसमिटेड एंड डिवाइस टू सीपीयू भी. बिल्कुल आपकी जो वर्डिंग होनी चाहिए, दैट शुड इंडिकेट कि जब एग्जामिनर पढ़े ना, examiner might be like, okay man, this banda is very cool CS banda. So you should not be writing device, a better word will be hardware. So आप hardware use करो, hardware. सही, हार्डवेयर इज मोर ऑफ लाइक द एक्चुअल. अब डिवाइस तो पूरे लैपटॉप हो गए ना, तो पूरे लैपटॉप से तो बेहतर है आप हार्डवेयर का वर्ड यूज करो. इट इज वे मोर CS बेस्ड वोकैबुलरी. तो अब ये आपका हो गया कंट्रोल बस की कहानी. जस्ट लाइक दैट जो आपको कंट्रोल बस होता है ना, उसके एक कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होनी चाहिए कि इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द टाइमिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डेटा. मतलब कि जब हम किसी चीज को डेटा बेचते हैं, तो जो आप लोगों को मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में समझाया था सिंक्रोनाइजेशन का, that the data is not out of order, the data is in order, data comes at time. I explained it using that biryani wali example, if you guys remember, if Ahmed goes to buy chicken and at the same time I might be cooking biryani, तो शुरू में जो टॉपिंग अनियंस है वो वाला टाइम है, उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि वी नीड टू इंश्योर कि सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस से हो. तो इसको जो सीक्वेंस से करने वाला काम होता है, इट डज नॉट मैनेजेस द डेटा, इट इंश्योर्स कि द डेटा गोज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर प्लान. तो जो हमारा प्लान होता है ना कि यार सबसे पहले योगा इस टाइम के अंदर योगा, लाइक इट्स माय डेली रूटीन. लाइक अगर मैं बोलूं 4:30 to 5:30 आई हैव अ क्लास, so then 5:30 to 5:50 I might have a break, 5:50 to 6:10 I might pray namaz, या maybe change my clothes for my classes, maybe boxing class के लिए मैं जा रहा हूँ तो मैं रेडी अप हो गया वगैरह वगैरह. तो वो चीजें, तो ये जो प्लानिंग है इसको जो टाइम के साथ इंश्योर करना होता है ना, दैट इज बेसिकली डन बाय दिस कंट्रोल बस, क्योंकि वो इसके थ्रू कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है विच इंश्योर्स कि यार सब कुछ प्रॉपर टाइम पे हो रहा है. सो लेट्स राइट दिस पॉइंट कि जो इसका एक की कैरेक्टरिस्टिक आता है ना, की कैरेक्टरिस्टिक, very important key characteristic. That key characteristic is basically how it is responsible for managing. It is responsible for managing what? It is responsible for managing आपका timing and coordination of data transfer. So managing the timing means कि like अगर मैंने एक काम करना है ना and it should take 2 seconds,
तो बाय सेंडिंग सिग्नल्स आई विल इंश्योर कि 2 सेकंड के अंदर ही, ऐसा ना हो कि 3 सेकंड में हो जाए. सो हमने ये इंश्योर करना है कि आपकी टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट रहे, एंड एट द सेम टाइम coordination is really important. So timing and coordination of data transfer. Coordination of data transfer. Bilkul, good. You guys can take notes. Bilkul, definitely do. Ab, what do I mean by this? कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन इन दिस एग्जांपल बेसिकली मींस कि लाइक अगर देखो मैं यहां से कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करता हूं, उस साइड पे मेरा कंप्यूटर प्रिंटर को ऑटोमेटिक ऑन कर लेते हैं. तो अगर मैं डेटा सेंड कर लेता हूं टू प्रिंटर और मेरा कंप्यूटर टाइमिंग के मसले की वजह से प्रिंटर को ऑन ही नहीं कर पाता, तो क्या फायदा हुआ? आई कैन नॉट गेट द डॉक्यूमेंट ऑन टाइम, राइट? So to ensure कि printer भी उसी टाइम पे ओपन हो जिस टाइम पे I'm sending the document, we have these control signals which are basically responsible for managing the timing and coordination of data transfers. So this is the main purpose. ये मैं लिख लेता हूँ, this is your purpose. So this is basically the main purpose of all this. जी नोट्स का क्या, अगर आप लोग ये मैं आप लोगों के साथ पीछे शेयर भी कर लूंगा, अगर आप लोग को नोट्स उस तरीके से बाद में देखना चाहते हो तो डू इट. बाय द वे टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर कंप्यूटर साइंस, मैंने तो कभी नोट्स नहीं लिए. लाइक रियलिटी, आई यूज्ड टू लिसन द लेक्चर वेरी अटेंटिवली, एंड इफ देयर वाज समथिंग जिसको याद करना होता था तो बाद में हम कर लेते थे. लेकिन टेकिंग नोट्स गिव यू वन बेनिफिट. अभी जैसे ये पॉइंट्स हो गए या बाय डायरेक्शनल, ये जो इस तरह कॉमन चीजें हैं इसको लिख दिया करो, बिकॉज दिस इज व्हाट बेसिकली दैट यू नीड टू राइट इन योर थ्योरी एग्जाम. So this was one reason why I'm basically personally love programming papers more, क्योंकि theoretical papers में चीजें याद करनी होती थी which I used to hate a lot. So मैं तो आप लोग को explain करने की full कोशिश करूँ ताकि आप ले. I had an A star and then I had a top in Pakistan distinction. Alhamdulillah. So I have a distinction, and for distinction you need what do you call it, an A star. So yes. So आप लोग को यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ने भी डिस्टिंक्शन लेनी है. फॉर दैट इट्स नॉट ओनली कि आप लोग ए स्टार के लिए एम करो, एम फॉर समथिंग बिग, एम फॉर दैट ए स्टार, एंड ए स्टार से भी ज्यादा एम फॉर अ डिस्टिंक्शन. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड back then. I had like the common 8 subjects. Like Aptabad mein they do not allow you to take extra subjects, even though I wished कि यार मुझे ले लेने चाहिए थे, but I did not take any in O levels. लेकिन एक बात ज़हन में रखना कि aim big just from now. When I was like at your time, maybe towards November, December, I had this thing in my mind कि यार I have to work hard to get a distinction. And I really wanted to get a distinction in CS, and alhamdulillah, prayers and all that definitely works alongside when you do the hard work. And so I got the distinction, and I got like the top in Pakistan. So mashallah, that's an alhamdulillah very big thing for me. And it was like a dream come true moment for me. So I want you guys to make this firm belief with yourself, a promise with yourself कि यार मैंने भी लेनी है. And you're going to work hard from day one. अभी से जो मैं आप लोग को काम देता हूँ, and inshallah आप लोग ले कर रहोगे. And inshallah, if you guys need any sort of help, I've always been mentioning कि you guys can reach out to me after class anytime. आप लोग WhatsApp पे करते हो, Instagram पे करते हो, या जहाँ से भी करना है आप लोग बस reach out to me if you have any questions, queries, even if it's not explicitly related to CS. If you need some guidance with other subjects, I can also help you until or unless it's not something जो कि course content के related both हो. Yeah. So how many years of past paper did I do? I did a lot. I have to check the. If I'm not wrong, मैंने CS के ना, I gave my exams in 2023. So I guess I started off. I did at least 5 साल के तो किए होंगे, इससे कम तो नहीं किए होंगे. But for programming paper, I also did the old papers क्योंकि we did not have any 15 marker questions because I was basically appearing in the exam जहाँ पे 15 marker was introduced for the very first time. So I did those old questions and I tried to do programming on that, which literally gave me a very big benefit when we had a very difficult type of 15 marker question. And I guess that was the reason that helped me get that distinction. So you always have to move 2 steps ahead from what the others are trying to do. So inshallah मैं आप लोग को classes में बताते जाऊंगा कि ऐसे क्या क्या चीजें करनी है, which will ensure कि आप लोग inshallah are ready for that distinction inshallah. So back to where we are. So it's necessary for the fact that when you are done with almost 5 years of past papers, you are almost done with everything that can be tested. So I have made this mistake in a few exams कि maybe I might have missed 1 year of papers and उसमें कोई ऐसी चीज आ जाती है
जो कि एग्जाम में टेस्ट और शायद आपको पता ना, यू आर लाइक रिग्रेटिंग इट लेटर ऑन. सो आई विल से yes, count it necessary to do at least 5 years of past papers. So in your example, you guys are appearing in 2026 inshallah. So yeah, a lot of questions are repeated. We are going to be doing past papers question. यहाँ पे खुद देख लेना, इतने ज्यादा repetition होते क्या बताऊं, बस wording change हो जाती है. एक scenario में अहमद होगा, in the other scenario it might be Saifullah, but the question is mostly identical. So ये चीजें एक आपको समझ आ जानी चाहिए कि कंट्रोल सिग्नल्स में विड्थ वाली बात ये है कि कंट्रोल सिग्नल्स के जो होते हैं ना, कंट्रोल सिग्नल्स, इट इज यूजुअली 8 बिट्स वाइड. तो इसके अंदर ये वाली बात ज्यादातर नहीं आती कि मतलब आप इसकी विड्थ को बढ़ाएं या ये वाली चीजें. तो आपके जो इसके अंदर यूजुअली होते हैं वो ये होता है कि इट इज यूजुअली 8 बिट्स वाइड, 8 बिट्स वाइड. So आपके जो कंट्रोल बस होते हैं ना, that is 8 bits wide, whereas address and data bus that can be varied, so you can increase it या decrease it. तो ये आप लोग को याद हो कि जो आपके कंट्रोल बस है, that is most probably fixed in most scenarios. So we are done with these buses finally. आप लोग को तीनों बसेस अच्छे से क्लियर हुए हैं या नहीं? Quickly guys, let me know in the chat box. Address, data and control bus, तीनों. Good. Baki, quickly. Perfect. Manal, quickly. Let me know. Is it clear or not? Good. Now we are done with the wires. We are done with the brain of the computer. Now we need to discuss something. कि यार ये जो brain है, brain, it is like the CPU. अगर आप लोग को बताऊं, CPU is like an office. It is an office. And inside that office, there are different floors. Each floor has to do a different work. So matlab agar ek office hai which might be having 3 floors, the first floor might be doing task number 1, the second floor wale pe sare task number 2 wale honge, third floor ke upar ground floor ke upar task number 3 wale honge. Now what's happening, aapka ek major jagah hai, uske andar you are breaking it into task. So just like that, your CPU is a big office. CPU के अंदर there are multiple components. So these floors in terms of CPU are basically कि आपकी CPU के अंदर there are some components, and those components are basically what they are registers. जो हम registers पढ़ते थे ना chapter 1 में, 8-bit register, 16-bit register, those were registers. लेकिन CPU, क्योंकि CPU on its own is a very special thing, तो जो registers CPU के अंदर लगे होते हैं, those are known as special registers. So you need to study a few special registers which are basically within the CPU, and each special register has to store something specific to the work it is doing. तो अगर वो task number 1 है तो वो register कोई और होगा, task number 2 है तो कोई और होगा, वगैरह. अब आपके कोर्स में कौन से registers है वो उसके लिए I have taken this picture. Let me see, कहाँ से you add a picture, add, and then you add a new image, right? So I took a screenshot yesterday. Yes, yeah, this one, done. So let me just enlarge it a bit, and आप लोग अच्छे से नजर आ रहा हूँ, because this is basically all the registers which you guys need to know. These are basically known as what? These are your special purpose register. तो इसको examiner अगर कभी refer करना चाहे ना, तो examiner will use the word special purpose registers. जो आपके जनरल आर्म वाले रजिस्टर्स होते हैं ना, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनका क्या क्या काम है. जो आपके आर्म रजिस्टर्स होते हैं वो वाले होते हैं 8 बिट, 12 बिट, जिनमें बाइनरी वैल्यू स्टोर होती है. These have some specific purpose to it. That is why they are known as special purpose register. And this diagram is basically from your Harder education book. So that book में से मैंने directly screenshot fetch out कर दिए. अब हमने डिस्कस करने हैं कि all these 5 registers, number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5, इनका काम क्या होता है. Now if you just look at these 5 registers, सबसे मजे की बात ये है कि number 3 which is memory address register and memory data register, ये जो दो चीजें ये तो हमने पहले से पढ़ी हुई. So your MAR and MDR, this is something जो कि हमने पहले से पढ़े. What are they? MAR basically stores the address of the memory that is currently being read from or written to. ये आपकी definition है. And जो MDR है, MDR stores the data which has been just read from memory or data which is about to be written to memory. So this is the exact definition जो कि मैं आप लोग को recommend करूँगा, आप लोग याद कर लो. Saifullah, ALU refers to arithmetic logic unit.
Its definition is basically it is a type of component within your CPU that is used for the purpose of doing arithmetic and logical calculations. So मतलब 2 plus 2, 2 plus 4, 8 plus 2, ये वाली जो calculations करनी होती है that are basically done by your ALU. ये हमने both start में पढ़ा था at the very start before control unit we discussed ALU कि किसी एडिशंस करनी हो 2 plus 2 करना हो तो सीपीयू के अंदर कौन सा पार्ट है विच इज डीलिंग विद दीज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो दैट इज बेसिकली योर एएलयू. तो अब आप लोग ये देखो वी आर डन विद एमएआर एंड एमडीआर. इसमें तो आप लोग को कोई मसला नहीं होना चाहिए इन माय ओपिनियन, राइट? अगर इसमें मसला नहीं है, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट रजिस्टर जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज नोन एज द सीआईआर. नाउ व्हाट इज द सीआईआर? लेट्स रीड इट डायरेक्टली फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट. अब आप यहां से देखो, the full form of CIR is basically current instruction register. Like up here, current instruction register. अब जब मैं बोलता हूं करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आपको इससे ही आइडिया हो जाना चाहिए कि द करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, उसका जो डेटा होगा या जो करंटली अभी हम जिसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, that data is basically stored in your current instruction register. So the purpose has been mentioned up here. एंड आपने बिल्कुल ही ये याद कर लेना है. सो अगर एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन आता है कि प्लीज लेट अस नो व्हाट इज सीआईआर या डिफाइन सीआईआर, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि द सीआईआर इज बेसिकली द रजिस्टर that stores the current instruction being decoded या फिर executed. Decoding का basically मतलब ये होता है कि डिकोडिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि इफ आई हैव टू गेट डेटा तो उसको आपस में ले आऊं, उसको मैं ब्रेक डाउन करूं कि ओके 2 plus 2 एक क्वेश्चन है, सो 2 को मैंने डिकोड कर दिया कि 2 अलग हो गया, प्लस को मैंने डिकोड कर दिया अलग, 2 को अलग कर दिया, तीनों को फिर इकट्ठा करके मैं एग्जीक्यूट कर दिया, आई गेट द आंसर एज 4. सैफुल्लाह, इन अ कंप्यूटर सीआईआर इज बेसिकली यूज्ड एट एवरी मोमेंट. किस तरह? लाइक आप मुझे एक बात बताओ, अभी आप कंप्यूटर के ऊपर जो चैट बॉक्स के ऊपर आप क्वेश्चन टाइप करते हैं, आप क्वेश्चन लिखते हैं ना, सर वेयर इज सीआईआर यूज्ड. द मोमेंट यू प्रेस एंटर, आपका सीपीयू बेसिकली कन्वर्ट्स दिस टेक्स्ट इनटू बाइनरी फॉर्म एंड दैट बाइनरी फॉर्म इज बेसिकली शेयर्ड ऑन गूगल मीट, राइट? एंड मुझे भी अब नजर आ रहा है आपका क्वेश्चन. लेकिन अब जब ये इसको प्रोसेस किया जा रहा था, दिस वाज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, तो सीपीयू के अंदर जो डेटा, लाइक लेट्स से अगर इसी एग्जांपल में आ जाओ, तो जो फ्लोर आपका करंट टास्क को डील कर रहा होता है ना, दैट इज सीआईआर. So dealing currently executing task, like अगर मैं अभी गेम खेलने लग जाऊं, executing task, like अगर मैं अभी RDR2 खेलने लग जाऊं, तो I might have Minecraft in my PC, but I'm playing what? I'm playing RDR2. So RDR2 is the one which is currently executing, right? So the one जो कि आपका सीपीयू करंटली एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उसके रिलेटेड जितना डेटा होता है ना, जितना डेटा आपका करंटली एग्जीक्यूटिंग टास्क का होता है, दैट इज बेसिकली स्टोर्ड इन योर सीआईआर, व्हिच इज बेसिकली व्हाट इट इज, योर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. तो इसको क्या बोलेंगे? सीआईआर. द सेकंड वन इज सीआईआर. क्लियर? इसमें कोई ज्यादा लंबी वाली बात आप लोग को नहीं करना. आपने हाँ, इट does not process, CPU processes the data. लेकिन CPU, आपको मैंने बोला था ना कि CPU gets the data from memory, तो मेमोरी से डेटा आके सीपीयू के अंदर तो आ गया, लेकिन सीपीयू के अंदर मल्टीपल ऑफिसेज है, उसमें किस ऑफिस में जाएगा? उस ऑफिस का बेसिकली नाम है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो वाली जगह है जहां पे आपका मेमोरी के वो पार्ट पे होगा जिसको अभी हम करंटली एग्जीक्यूट करें. फिर वंस डन विद सीआईआर, आपका जो सेकंड पार्ट आता है ना, दैट इज नोन एज एक्यूमुलेटर. यार आपके कंप्यूटर में जो कुछ होता है ना, दैट इज ऑलरेडी इन बाइनरी फॉर्म. सो इफ देयर इज समथिंग जो कि आप अगर अभी एफ बटन को प्रेस करते हो ना, एफ बटन, तो उसको जो ऑस्की टेबल हमने पढ़ा था ना, ऑस्की टेबल चैप्टर नंबर 1 में, उसी मोमेंट व्हेन यू प्रेस द एफ बटन, उसी मोमेंट वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है. सो द मोमेंट कंप्यूटर गेट्स इट, वो बाइनरी फॉर्म में ही हो चुका होता है. सो आपका जो बाइनरी फॉर्म जब सीपीयू में जाता है ना, सीपीयू के अंदर जो बाइनरी फॉर्म जिस जगह के अंदर स्टोर होता है, जब उसके ऊपर जब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जिस पॉइंट पे वो स्टोर होता है, दैट इज बेसिकली योर सीआईआर. तो सीआईआर नाम से ही आप लोग को आइडिया हो जाएगा, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. इट इज द रजिस्टर दैट इज बेसिकली स्टोरिंग द करंट इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग डिकोडेड एंड आल्सो एग्जीक्यूटेड. ये आपको पता होना चाहिए सीआईआर का. नाउ द सेकंड थिंग इज एक्यूमुलेटर. What do we mean by accumulator? Accumulator short form is ACC. तो अगर एग्जाम में कभी ACC वाली वर्ड आई तो आपके जहन में होना चाहिए कि ACC refers to accumulate. Now accumulator क्या करता है कि I told you guys कि if I want to do 2 plus 10,
If I want to do, let's say 2 plus 10, so I know the answer is 12, right? I know the answer is 12. CIR is like RAM. Exactly. बिल्कुल correct. CIR is just like RAM, लेकिन CIR is basically in your CPU. तो जो CPU के अंदर जो RAM का थोड़ा सा पार्ट है, अब RAM के अंदर में भी पूरी गेम हो, RAM के अंदर the whole process is being there, like full RDR2. लेकिन RDR2 में जो specific एक part, maybe if I'm playing some maybe I'm playing some video, तो जो वीडियो वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना सीपीयू के अंदर, लाइक सीपीयू इज द वन प्रोसेसिंग इट, तो जो वीडियो को RDR2 में जो वीडियो को प्रोसेस करे, दैट इज बेसिकली डन बाय योर CIR. सो CIR के अंदर आपकी ये वीडियो वाली जो फाइल है, दैट इज गोना गो इनटू योर CIR. बाकी गेम तो चल रही है, दैट इज इन योर रैम, बट जैसे ही आप रैम को गेम बंद कर लो, रैम गेट्स एम्प्टी, एंड जैसे ही इधर आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, तो आपका CIR गेट्स एम्प्टी. तो दैट इज बिल्कुल वेरी, आपने अच्छी किस्म की डेफिनेशन, यू गॉट द आइडिया लिटरली वेरी वेल. कि जो आपका CIR है, दैट ऑपरेट्स समवट सिमिलर टू द वे यू हैव दीज रैम्स. तो अब हमारे पास रैम वाली कहानी तो थोड़ी सी है, डिफरेंट है, लेकिन यू गॉट द आइडिया, इट्स जस्ट लाइक दैट. नाउ कमिंग बैक टू एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर क्या होता है? जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट इरेज दिस. Done, and यहाँ से भी I need to enlarge this eraser a bit. इतनी कहाँ से होता है? बड़ा हो जाओ भाई. हाँ, ये लो. Now done. So now, अगर आप लोग को याद हो, at the start of this topic we discussed something known as ALU. We discussed something as arithmetic logic unit, which was basically dealing with what? It was dealing with your logical and arithmetic questions. तो अगर आपने कोई मैथमेटिकल क्वेश्चंस इन सिंपल वर्ड्स में करने हैं, या फिर कोई इस तरह के क्वेश्चन जिसके अंदर आपने कोई कंडीशंस को अप्लाई करना होता है, तो वो जो आपके डील कर रहे होते हैं, दोज आर बेसिकली डन बाय ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. तो इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस क्वेश्चन 2 plus 10, जो 2 plus 10 है, दिस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय योर ALU. लेकिन नाउ आई गेट द आंसर एज 12. Where will I be storing the answer 12? The answer is basically going to be stored in your ACC. तो आपका जो accumulator होता है, accumulator basically stores the answer, या stores the data that has been processed by your arithmetic logic unit. So like where we have learned decoding. आपके कोर्स में कोई decoding, आपने कोई decoding नहीं सीखना. It is just आपको बताने के लिए कि decode कंप्यूटर करता है. Okay? आपने कोई decoding नहीं करनी. This is something जो कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप कंप्यूटर को कोई चीज बताते हो ना, तो कंप्यूटर definitely has to break it up. Like अगर मैं अभी आपको बोलूं कि सैफुल्ला you need to get an A star, तो मैंने तो आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि यू नीड टू गेट एन A स्टार, लेकिन नाउ यू नीड टू ब्रेक इट. लाइक आप इसको डीकोड कैसे करोगे? ओके, आई नीड टू फर्स्ट कवर द कोर्स, डीकोडेड. I need to watch recordings, decoded. I need to do past paper questions, decoded. फिर each of these decoded part को आप execute करोगे, तो computer operates in a similar manner. हम instruction देते हैं like 2 plus 10. Instruction मैंने दे दी, this is instruction. अब वो इसको decode कर रहा है कि यार 2 क्या है, plus क्या है, 10 क्या है, and जो इसको फिर आगे उसको execute कौन करते हैं? Your ALU. And ALU उसको execute करके जो इसका answer आता है like 12 in this context, उसको जहाँ पे store किया जाता है, that is known as your ACC or accumulator. So if we go back to the table, आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि ACC is basically what? It is the register that is used when carrying out ALU calculation. It stores the data temporarily during the calculations. Like what do I mean by temporarily? Like if I get 2 plus 10, 12. 12 आ गया ना, 12 को मैंने accumulator में स्टोर कर दिया, but now I want 12 in the memory. Like अगर इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यार ये स्क्रीन के ऊपर आ जाए, तो 12 यहाँ से CPU उसको कंट्रोल या डेटा बस के थ्रू सिग्नल देगा कि bring it to the screen. So स्क्रीन के ऊपर 12 आ जाएगा, एंड फिर आपका पीछे जो नेक्स्ट कैलकुलेशन होगी वो होगी, एंड आपके एक्यूमुलेटर के अंदर फिर से ये एम्प्टी हो जाएगा, एंड आपकी जो भी नेक्स्ट एग्जीक्यूशन हुई उसको ALU करेगा, उसका जो आंसर होगा वो फिर आपके एक्यूमुलेटर में जाएगा, एंड सो ऑन. तो जो आपका टेम्परेली जब आप ALU की कैलकुलेशंस करते हैं, उसके रिलेटेड जो आपका डेटा जिस पॉइंट पे स्टोर होता है, दैट इज बेसिकली नोन एज योर एक्यूमुलेटर और ACC. तो इस एक्यूमुलेटर वाली कहानी क्लियर? इट इज बेसिकली जब आप मैथमेटिकल, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल क्वेश्चंस को डील कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान जो आपके मैथमेटिकल वैल्यूज को जो आपने टेम्पररी स्टोर कहीं पे करना होता है ना सीपीयू के अंदर. अगर मैं आपको बोलूं कि 57,000 डिवाइडेड बाय 60 करो, तो अभी आप मुझे करके दे सकते हो.
शायद अभी आपको मुश्किल लग रहा हो, यू नीड टू गेट अ पेज एंड पेन एंड यू माइट बी लाइक 57,000 डिवाइडेड बाय 60. तो आप जो पेज टेम्पररी आपने कहीं पे लिख दिया ना टेम्पररीली, अब इसके बाद अब जो कंप्यूटर जब इस तरह टेम्पररी किसी जगह पे डेटा को स्टोर करता है ना, एंड इट हैज टू डू दिस लॉजिकल कैलकुलेशन या अर्थमेटिक रिलेटेड कैलकुलेशन, तो वो जिस पॉइंट पे इसको स्टोर करता है, दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, इट इज रेफर्ड टू एज योर accumulator, which is basically your ACC. So is ACC and CIR clear? Yes or no? अच्छा रेयान, पता है आपने जवाब दे दिया, गुड टू नो, बट बाकी भी पता है, रेयान, सैफुल्ला, मनाल, एवरीवन. Good, 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 good. Saifullah, do you have any questions? Yeah, is it clear? Clear. Okay, good, good. Now we have done CIR, we have done ACC, MAR, MDR तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि क्या होता है. Now we have one last thing known as program counter. अब आप लोग के जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे तो मुझे पता लग गया कि लाइक एट द सेम टाइम अभी इफ यू आर यूजिंग योर फोन, yesterday when you guys were taking classes I was getting the messages in the WhatsApp group, like मेरे मुझे तो इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, तो मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग एक साइड पे क्लास भी ले रहे हो and at the same time you guys were also using WhatsApp. So what were you guys doing? You guys were doing multitasking, right? You guys were trying to do multiple things at once, so multitasking. लेकिन आप कंप्यूटर के ऊपर एक टाइम के ऊपर ना मल्टीपल चीजें, मल्टीपल ऑर्डर्स दे सकते हो उसको. लाइक व्हाट डू आई मीन बाय मल्टीपल ऑर्डर्स? हाँ बिल्कुल, आई डिड कॉट यू अहमद, इट वाज यू आई गेस, एंड आई गेस इट वाज अहमद, तुम ही थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट अब आप मल्टीटास्किंग वाला सीन जब करते हो, if I want to send document number 1, yes बिल्कुल क्लब्स का भी बिल्कुल that is something जो कि हम इंट्रोड्यूस करें, it's literally really good for everyone. So जो हम मल्टीटास्किंग वाली बात कर रहे हैं, अब मैं अगर एक डॉक्यूमेंट खोलता हूं, दिस इज डॉक्यूमेंट नंबर ए ऑन माय, इट्स अ पीडीएफ फाइल, एंड देन दिस इज डॉक्यूमेंट नंबर बी, मे बी दिस इज टेस्ट ऑफ अहमद, दिस इज टेस्ट ऑफ रेयान. Now I want to print both of these tests, but I have one printer. Now I first give it an order. कि हाँ, it can be done on anything. Like this is just an example. See, अब देखो, अब I give it an order कि पहले A को करो and then B को करो. अब I did this, right? अब वो पहले A को कर लेते हैं. How does the computer understand? कि यार once A is done, I need to do B after that. How does the computer have this element in its brain कि यार A को मैंने कर दिया, अब इसके बाद मैंने क्या करना है? I need to go with B. This thing is basically done by your program counter. So the program counter basically stores the address of the next instruction that needs to be processed. So अगर मैं इधर example आपको दूं कि अगर मैं बोलूं print, I want to print what? I want to print. अब जब मैं प्रिंट करता हूं तो आपको पता है कंप्यूटर को तो ये नहीं पता ना कि आई वांट टू प्रिंट टेस्ट ऑफ अहमद. कंप्यूटर किस तरह बोलेगा? कंप्यूटर विल से टेल मी द एड्रेस, द बाइनरी एड्रेस ऑफ द पॉइंट वेयर आई वांट टू, वेयर यू वांट टू प्रिंट दैट डॉक्यूमेंट. सो आई विल बी लाइक प्रिंट द डॉक्यूमेंट व्हिच हैज द एड्रेस 011000110, एंड ये कहां पे स्टोर होता है? दिस इज बेसिकली स्टोर्ड इन योर MAR, राइट? सो मैंने उसको MAR में बता दिया कि ये एड्रेस है, इस वाले पॉइंट को आपने प्रिंट करना है. सो इट prints that. लेकिन at the same time मैंने उसको ये भी बोल दिया कि like bro, you also need to print the point or the document which is in 11000110, which is basically what? It is the Reyan's test. But आप एक बात मुझे बताओ, MAR तो एक टाइम के अंदर एक ही एड्रेस को कैरी करेगा ना. लाइक अगर मैं एक ही टाइम पे उसको दूसरा एड्रेस भी बता दूं तो कंप्यूटर तो बोलेगा भाई आई हैव अ सिंगल MAR वाली स्लॉट, उसके अंदर पहले से जगह है, इट हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड, हाउ कैन आई इंक्लूड सम न्यू एड्रेस? तो देयर इज अ रिस्क कि यार ये डेटा लूज हो जाए, दिस एड्रेस वैनिशेस. तो अगर ये वैनिश हो गए तो इसका मतलब है रेयान्स का टेस्ट तो कभी प्रिंट होगा ही नहीं. इसी तरह तो अब इसको काउंटर करने के लिए देयर इज दिस थिंग नोन एज प्रोग्राम काउंटर. सो वी हैव समथिंग नोन एज प्रोग्राम. A question, can MAR access my messages? No, MAR cannot access your messages. MAR only knows कि आपके जो messages के जो address है ना, मतलब आपके कंप्यूटर या आपके फोन के अंदर जो जहां पे वो messages stored हैं, जिस फाइल के अंदर stored है, उनका क्या क्या एड्रेस है, that is something which your CPU knows, and फिर वो
MAR के अंदर वो कर सकता है। MDR on the other hand, exactly Ahmed, MDR can access your messages. It can send those messages to your CPU या maybe at the same time अगर उस आप भेजना चाहते हो तो वो चीजें कर सकते हो। So आपके पास जो प्रोग्राम काउंटर आ गया ना, प्रोग्राम काउंटर which has this short form of PC, लोगों को बड़ा इसलिए याद रहता है ये क्योंकि इट्स पीसी जो हम पर्सनल कंप्यूटर का बोलते हैं ना, पीसी। तो अब प्रोग्रामर्स ने ये सोचा कि यार इफ दिस कैन गेट वैनिश्ड, व्हाई नॉट ब्रिंग दिस इनटू प्रोग्राम काउंटर। तो हमने जो अगला वो एग्जीक्यूट करने होते हैं ना, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हिच वी वांट टू एग्जीक्यूट या प्रोसेस, उसको हम डाल देते प्रोग्राम काउंटर के अंदर। सो वन एक दफा आपका ये वाली प्रिंटिंग हो जाती है, when this is completed and CPU is like okay give me task, तो वो ये नहीं इंतजार करेगा कि ओ यार there was someone who did tell me an address लेकिन I lost it, अब मैं क्या करूं। he will be like okay don't worry man, CPU जो CPU के अंदर प्रोग्राम काउंटर वो बोलेगा bro I had the address with me। सो आपका जो टास्क था दैट इज बेसिकली एट दिस एड्रेस। सो आप CPU जो है ना, CPU बोलेगा कि भाई जो नेक्स्ट चीज आपने एग्जीक्यूट करनी है दैट इज देयर इन योर प्रोग्राम काउंटर। सो प्रोग्राम काउंटर से वो डेटा लेकर आपकी वो चीज एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जो उससे अगला इंस्ट्रक्शन अगर एट द सेम टाइम में बोल दूं कि सैफुल्ला ने क्रोम ओपन करने का भी बोल दिया कि आई एम ओपनिंग गूगल क्रोम, तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है अगर ये बारी बारी सारे एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, तो जब बारी बारी सारे एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं तो जो क्रोम टैब को ओपन करने की इंस्ट्रक्शन है दैट गोज वेयर इट गोज इनटू प्रोग्राम काउंटर। सो व्हेन योर CPU इज डन विद दैट चीज, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर उसको एग्जीक्यूट करेगा। यार देखो पीसी तो आपके जो टेस्ट को स्टोर करेगा ना, दैट इज स्टोर्ड इन योर मेमोरी इज अ टोटल डिफरेंट थिंग देन योर CPU के अंदर जो भी हम ये चीजें कर रहे हैं ना, प्रोग्राम काउंटर CPU, इसके अंदर ये है कि डेटा कम्स, डेटा इज एग्जीक्यूटेड एंड डेटा लीव्स। सो चीजें आती हैं, वर्क इज बीइंग डन ऑन दैट एंड देन इट लीव्स। सो अगर आपके पीसी के ऊपर जो आपका प्रोग्राम काउंटर होगा, आपका प्रोग्राम काउंटर इज गोइंग टू स्टोर द एड्रेस ऑफ योर टेस्ट। So your program counter will temporarily store the address कि यार इसके बाद when CPU is like कि अब मैं आगे क्या करूं, तो the program counter will tell it कि bro you need to go to this address and यहाँ से print कर देना। So for the time being when आपके अहमद का टेस्ट प्रिंट हो रहा है, so for the time being जब तक एक सेकंड, जब तक आपका ये वाला काम हो रहा है, जब तक आपका ये वाला टास्क हो रहा है प्रिंट 0110010, जब तक आपका ये टास्क हो रहा है तब तक आपका प्रोग्राम काउंटर विल हैव द डेटा। यस इट इज ऑल डन ऑटोमेटिकली बाय CPU, इसमें आप लोगों ने कुछ नहीं करना होता। तो अभी आप जब गूगल क्रोम खोलते हो, आपने कभी सोचा है कि when you open Google Chrome maybe it lags a bit, maybe there not lags but there is a slight delay, हाँ मैं समझा दूं, there is a very slight delay। वो डिले क्यों आते हैं? That delay comes because of the fact कि जब उस दौरान कोई और टास्क एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो जब आपकी बारी आती है तब तक आपका जो गूगल क्रोम का ओपनिंग वाला काम होता है ना, दैट गोज इनटू योर प्रोग्राम काउंटर, सो इट गोज इनटू योर पीसी। तो जब वो पीसी के अंदर होते हैं बाकी काम हो जाते हैं तो CPU इज लाइक व्हाट्स नेक्स्ट, एंड वो पीसी से ले लेते हैं कि ओके वी नीड टू ओपन गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम ओपन हो जाता है। दिस इज बेसिकली द आइडियोलॉजी, इट इज एन एग्जांपल। शायद दिस इज वन रीजन व्हाई समटाइम्स आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशंस जब बहुत चीजें ओपन होती है एक टाइम के ऊपर तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो ये जो स्लाइड से डिले होती है उसके पीछे ये लॉजिक होती है प्रोग्राम काउंटर वाली। अब नाउ इफ आई हैव टू डिस्कस द एग्जैक्ट डेफिनेशन या पर्पस ऑफ दिस रजिस्टर, तो आप लोग ये समझो कि प्रोग्राम काउंटर is basically the register that stores the address where the next instruction to be read can be found. It is not a map, it is a temporary Saifullah just said कि is program counter a map? No, it is not a map, it is type of a temporary point जहां पर जो next instruction होगी ना वो उस वक्त के लिए वहां पे रुक जाएगी। तो प्रोग्राम काउंटर की जो डेफिनेशन आप लोग को समझ आनी चाहिए, इट इज बेसिकली द रजिस्टर दैट स्टोर्स द एड्रेस वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रेड कैन बी फाउंड। तो जो मैंने अभी आप लोग को समझाया कि दिस रजिस्टर, ओह वेयर इज इट, आई जस्ट हैड अ व्हाइट पेन। दिस रजिस्टर it stores what? It stores the address, what address of the next instruction. So in next instruction, simple अल्फाज में आपको ये बोलूं कि यार अगर एक काम ऑलरेडी हो रहा है ना, अगर एट वन मोमेंट में बोल देता हूँ कि एक काम हो रहा है लेकिन उसी दौरान मैं इसको बोल दूं कि ये काम भी करो, तो अनटिल और अनलेस आपका जब पहला काम जब तक कंप्लीट नहीं होता दूसरा काम नहीं स्टार्ट हो सकता। तो फॉर द टाइम बीइंग जो आपका दूसरा काम है
उसके जो एड्रेस है ना दैट इज बेसिकली स्टोर्ड इन योर प्रोग्राम काउंटर, ताकि डेटा लूज ना हो। क्योंकि मैंने आपको समझाया ना यहाँ पे कि देखो आपका जो एड्रेस है, लाइक मैं बोलूँ अहमद के टेस्ट को प्रिंट करना है, सो अहमद के टेस्ट को प्रिंट करना है, तो अहमद की जो एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ द पॉइंट जहां पे अहमद का टेस्ट है, उसको हम कहां पे स्टोर करेंगे? हम एमएआर में करेंगे, डेफिनेटली राइट। एमएआर इज द वन थिंग व्हिच इज डीलिंग विद व्हाट, इट डील्स विद योर एड्रेसेस। तो एमएआर के अंदर तो अहमद का एड्रेस आ गया। एट द सेम टाइम मैं बोल दूं कि यार रेयान के भी टेस्ट को प्रिंट कर दो, तो रेयान का टेस्ट तो इस तरह प्रिंट नहीं हो सकता क्योंकि एमएआर के अंदर ऑलरेडी अहमद का टेस्ट है। तो ये तो मसला हो गया। क्यों मसला हो गया? क्योंकि एमएआर के अंदर एक टाइम में एक चीज हो सकती है। लेट्स से दिस इज एन एग्जांपल, सही, हम ये सपोज कर लेते हैं कि एमएआर के अंदर एक टाइम में एक चीज हो सकती है। तो अब रेयान क्या करेगा? अब अगर मैं इसको किसी जगह में स्टोर नहीं करता तो कंप्यूटर तो शायद अगर ये मैं ऑर्डर दे भी दूं, कंप्यूटर विल बी लाइक यार आई डोंट हैव स्पेस, मैं कहाँ करूं, तो इसको गायब कर देगा। व्हेन इट वैनिशेस तो फिर तो कंप्यूटर को जो मैंने ऑर्डर दिया वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि सीपीयू को पता हो कि जब मैं एक काम कर लूं उसके बाद दूसरा काम करूं, तो रेयान का जो टेस्ट होगा दैट विल बी बेसिकली टेस्ट नहीं, रेयान के जो टेस्ट के एड्रेस होगा ना, एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये इंस्ट्रक्शन मैंने इसको दी है कि भाई यू नीड टू प्रिंट 1100 तो ये जो ये वाली स्टेटमेंट है ना, प्रिंट 1100 ये जाके आपके प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होगी। तो प्रोग्राम काउंटर इज बेसिकली गोइंग टू बी स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है? प्रिंट जो भी एक चीज है ना, दिस कुड बी एनीथिंग, प्ले ऑडियो, तो प्ले ऑडियो भी एक इंस्ट्रक्शन है। तो अगर वो प्रोग्राम पीछे कोई और काम हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर टेम्पररी उसको स्टोर कर देगा अपने पास कि ओके मैं अपने पास रखता हूँ, जब बाकी चीज हो जाएगी तो अब मुझे एक बात बताओ, प्रोग्राम काउंटर के बाद जब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करने लगेगा, अब प्रोग्राम काउंटर इज द वेरी लास्ट एलिमेंट, राइट? प्रोग्राम काउंटर इज द वेरी लास्ट एलिमेंट जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा। प्रोग्राम काउंटर से जब डेटा निकलेगा वो सीपीयू में जाएगा। अब सीपीयू के अंदर जब हम किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो वो कहां पे स्टोर होता है? इट इज बेसिकली स्टोर्ड इन योर CIR। तो आपका CIR के अंदर डेटा चला जाता है फ्रॉम योर पीसी टू CIR। तो ये जो साइकिल है कि डेटा किस तरह डीकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये है कि ये जो 5 आपको मैंने स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स बताया ना, दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। सो आप लोग मुझे ये बताओ, is there any sort of questions regarding these 5 special purpose registers? या no? Perfect रेयान, सैफुल्लाह, अहमद, बाकी भी सब बताएं। Good to know. Perfect. Saifullah, do you have any questions? Perfect. So good to know. ये जो चीज है ये बस आपको इतनी पता होनी चाहिए कि इन 4-5 चीजों का पर्पस क्या होता है। एंड डू नो कि इन रजिस्टर्स को क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। Chalo, that's it. I'm also ending the recording and the class ends here. Inshallah, see you guys tomorrow, inshallah. And the recording will be posted. And also, again, this weekend, I will be posting chapter number 2 ki worksheet. So you guys need to do that, inshallah. And that's all for today. Allah Hafiz, and enjoy and maze karo. And take care. Bye bye. So good to know that it was such an informative class. And let me just end the recording.